हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन 4 में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस करेंगे। आइए पहले इस टॉपिक को हम इंग्लिश में देख लेते हैं और फिर इसको हिंदी में हम कंटिन्यू करेंगे। सो एज वी नो दैट एटम्स दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स and these subatomic particles, first proton, it was discovered by E. Goldstein, electron was discovered by J.J. Thomson, and neutron was discovered by J. Chadwick. Now protons and neutrons, they are present in the nucleus of an atom, and the electrons, they are revolving around the nucleus in discrete orbits, as we have just seen in our previous video. जैसा कि बोर एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। नाउ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड दिस इज डिनोटेड बाय Z. दैट मीन्स प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, it is represented by the symbol Z. The number of electrons in an atom is equal to the total number of protons present in it. Therefore, the net charge of the atom is 0 or neutral. But when the atom loses or gains electron, the balance of electrons and protons get disturbed and it becomes charged, whether it is positively charged or negatively charged, and it forms ions. Suppose we can take an example of, suppose we take an example of fluorine. Atomic number of fluorine is 9. Its electronic configuration is 2, 7. Now it is having 7 electrons in its outermost shell, which is not possible for fluorine to lose these 7 electrons to complete its octet. Rather, it gains 1 electron and completing its outermost octet, and now this fluorine atom gets converted into fluorine ion. That means negative charge is there on fluorine. Why? Because it has gained 1 electron. So in case of neutral atom, total number of protons were 9, total number of electrons were 9, but when it becomes ions, protons remains 9, but the electron has been increased by 1. That means the total electrons are 10. So in this way, negative ion is formed. So when an atom it is gaining or losing electron, so the number of protons and neutrons gets varied. Proton is same, but the number of electrons is changed. Similarly, in case of positive ion, we can see, for example, sodium. If we can take an example of sodium, atomic number of sodium is 11, electronic configuration is 2, 8, 1. Now this sodium is having how many protons? 11. Electrons 11. Now this 1 electron in its outermost shell, it tends to lose this electron to attain stability, so it gets converted into sodium ion. Now this sodium ion, atomic number remains the same, 11, but number of protons are 11 and number of electrons has been decreased to 10. So that means protons remains same and number of electrons get varied. So in this case, a neutral atom changes into positive ion by losing 1 electron. So in this way, the number of protons and electrons get varied when an atom gets converted into ions. Now next is mass number. Now mass of 1 proton is taken as 1 unit and the charge on this proton is +1, and it is in case of neutron, again the no charge. Now mass of electron is negligible and the charge on it is taken as -1. Now neutrons and protons, these are the subatomic particles which are present in a nucleus. So as we have seen that in the center there is a nucleus in which protons and neutrons are present, and they together therefore form nucleons. So the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus is known as mass number.
That means the number of protons plus neutrons. It gives you the mass number. Now next is isotopes. Now the atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers are known as isotopes. As example of chlorine is given here. So any atomic number is written at the bottom of the this element, and mass number is written on top. So the example of chlorine is given. We can also take an example of carbon. So the two isotopes of carbon are carbon 12 and carbon 14. 6 is the atomic number of carbon and 12 is the mass number. So by knowing the mass number and number of protons, we can calculate the number of neutrons. As we know mass number, so mass number is equals to proton plus neutron, and as we know that atomic number is equal to the number of protons. So if we know mass number, if we know protons, for example in this case, suppose we take carbon 12, mass number is 12 and number of proton is 6, so 12 minus 6 will give you number of neutrons, that is 6. So in this way we can calculate. Similarly, we can take an isotopes of chlorine, 3 isotopes of hydrogen, that is deuterium, tritium and protium. So in case of protium, as you are just seeing, atomic number is 1, that is the same, but mass number is a different. Protium 1, deuterium 2 and tritium 3. So that means protium is having no neutron, deuterium is having 1 neutron and tritium is having 2 neutrons. The mass number of an atom is taken as the average of atomic masses of its forms as per percentage of existence of its isotopic forms. So if we take an example or a sample of chlorine, so that means if we have 2 isotopes of chlorine, that is chlorine 35 and chlorine 37, these are present in the ratio 75 is to 25. So then the mass number calculated comes out to be 35.5. Now what are the applications of isotopes? This question is also important from the exam point of view, how to calculate mass number and what are the applications of isotopes. So certain isotopes have radioactive properties, so therefore it is used in several ways, like iodine isotope is used in the treatment of goiter, cobalt is used in the treatment of cancer, and isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors. Now let us see the question answers. One more topic is left, that is the isobars. So in case of isobars, atoms having atomic number different but the masses are same. For example, if we take an example of calcium and argon, atomic number of argon is 18 and that of atomic number of argon is Ar, symbol is Ar, 18 and calcium atomic number is 20. So atomic numbers are different but mass numbers are same, that is 40. Mass of argon and calcium is same, 40, but atomic number is different. So these are known as isobars. First question, what are nucleons? So as we have just seen, the atoms in an atom, the neutrons and protons, they are present in the nucleus, therefore it is known as nucleons. Define the mass number and atomic number. So mass number is the number of, as we have just studied, mass number is the number of protons plus neutrons, and atomic number is number of protons. Write the applications of any 3 isotopes. So as we are seeing the isotopes and its applications, so we can write any of these isotopes like iodine isotope, cobalt isotope and uranium isotopes where they are used.
Now calculate the mass number and atomic number of the atoms having 6 electrons, 6 protons and 6 neutrons. So that means atomic number is 6. If the number of protons is 6, means atomic number is 6, and atomic number is 6 is of carbon. So mass number is 12, that is the number of protons and neutrons. So mass number is 12 and atomic number is 6. Next, question 5, write the symbol and valency of elements from atomic number 1 to 18. So if you see in your NCERT book, you will find all these 1 to 18 elements, its a symbol and valency. You can just learn up to 20. So the 19th is the potassium, and the symbol of potassium is K. Atomic number is 19 and its valency again, electronic configuration is 2881 and valency of potassium is 1. Next, 20th is calcium, atomic number is 20, configuration is 2882 and its valency is +2. So you can learn up to 20 elements. अब एक बार हिंदी में देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे कि किस तरह से हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की थी। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि हमने बोर मॉडल में देखा था। तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है और उसको हम Z से भी दर्शाते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उसके ऊपर आवेश 0 होता है। लेकिन जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो वह असंतुलित हो जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वह आयन का निर्माण करता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से भी इसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एटम है, यह है सोडियम। सोडियम का प्रतीक है Na और इसका परमाणु क्रमांक है 11। अब इसके अंदर परमाणु संख्या 11 है, यानी कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं। तो प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 11 हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सोडियम कैसा है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज 0 है। लेकिन जैसा कि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 281, तो ये स्थायी नहीं है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को ये त्यागता है जिसके कारण ये स्थायी हो जाता है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये सोडियम कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन के ऊपर, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया। तो इसके ऊपर प्रोटॉन तो इसमें 11 ही हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। तो जब ये जो न्यूट्रल एटम है वो आयन में बदलता है, अब यहाँ पर प्लस आयन में बदला है, पॉजिटिव आयन में, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है या बदल गई है। उसी तरह से नेगेटिव आयन भी जब ये बनाता है तो ये नेगेटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी नेगेटिव आयन उसके अंदर बनता है। उसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287, भारी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 17 हैं। तो ये क्लोरीन कैसा है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये क्लोरीन से क्लोराइड आयन, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 18, क्योंकि बाहरी कक्ष में जो ये 7 इलेक्ट्रॉन थे इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से जब ये आयंस बनते हैं तो उनमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बदल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है और आवेश +1 होता है प्रोटॉन का हमेशा,
और जबकि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान इकाई है वह भी 1 है, लेकिन उसके ऊपर आवेश 0 होता है। तो प्रोटॉन्स के ऊपर आवेश प्लस होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर -1 होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ उपस्थित हैं? परमाणु के नाभिक में, तो इसीलिए इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अब प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनकी कुल संख्या, यानी कि प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, ये किसके बराबर हो गए? द्रव्यमान संख्या के। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। समस्थानिक हम देखें तो समस्थानिक क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें की परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि आप यहाँ क्लोरीन में देख रहे हैं, नीचे 17 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उसकी परमाणु संख्या, नीचे हम लिख रहे हैं किसी भी परमाणु के और ऊपर उसके द्रव्यमान संख्या लिखी हुई है, वो आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या अलग है। इसी तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें आप देखें कि नीचे 1 लिखा हुआ, परमाणु संख्या समान है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या इसमें समान है और द्रव्यमान संख्या बदल रही है, यानी कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके साथ साथ हम कार्बन का उदाहरण भी ले सकते हैं कि कार्बन के हमारे पास 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, परमाणु संख्या इसकी 6 है। अब ये 6 क्या दर्शा रहा है कि ये इसकी परमाणु संख्या है और परमाणु संख्या यानी कि ये प्रोटॉन्स की संख्या है इसके अंदर और इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जैसे कार्बन 12 है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 ही न्यूट्रॉन है। और जबकि हम कार्बन 14 में देखें तो 6 अगर उसमें प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8 न्यूट्रॉन उसके अंदर हो गए। तो इस तरह से हम उसमें द्रव्यमान संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता और प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है कि उसकी जो द्रव्यमान संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमें क्लोरीन की औसत निकाल के दर्शाई हुई है, जिसमें जो क्लोरीन का आइसोटोप या समस्थानिक 35 है वो क्रमशः 75 और 25% हो। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान हमने कैलकुलेट किया है उसको, और कैलकुलेट करने पर, ये कैलकुलेशन जनरली एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ आपको इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये 35.5 इसमें आया है। अब समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या क्या हैं कि कुछ तत्वों में समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनके कारण इनको हम कई तरह से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आयोडीन समस्थानिक को घेंगे के इलाज में यूज किया जाता है, कोबाल्ट के समस्थानिक को कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि समभारिक क्या है। समभारिक वह तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं आर्गन और कैल्शियम का। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है और कैल्शियम की भी द्रव्यमान संख्या 40 है। तो यानी जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है वह समभारिक कहलाते हैं। अब पहला प्रश्न हम देखते हैं, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं। किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। अभी हमने डिस्कस किया है समस्थानिक के उपयोग, तो यहाँ से आप किन्हीं 3 उपयोग के बारे में लिख सकते हैं। आयोडीन का है, कोबाल्ट है, यूरेनियम, और इनको आप इस आंसर में लिख सकते हैं। थर्ड, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। जैसे अभी हमने बात की थी, परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कह रहे हैं, और द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो क्या कहला रही है? द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने बात की, परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉन की संख्या, तो 6 प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक इसका 6 है। और द्रव्यमान संख्या क्या है?
प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि 6 + 6 तो क्या हो गया 12। और अगर हमें तत्व भी ज्ञात करना है तो ये हो गया द्रव्यमान संख्या, अगर उसकी 12 है और परमाणु संख्या 6 है तो ये हम बात कर रहे हैं कार्बन की। 5th क्वेश्चन है 1 से 18 तक परमाणु संख्या के तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। तो एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे लेसन 4 में आपको पूरा चार्ट मिलेगा जिसमें 1 से 18 तक तत्वों की परमाणु संख्या दी हुई है। तो आप 20 तक याद करें। 19 परमाणु संख्या वाला तत्व है पोटेशियम, उसका प्रतीक के है। 2881 उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इसका प्रतीक के है, क्योंकि बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये छोड़ता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, इसकी संयोजकता होती है +1। और तत्व जिसका परमाणु संख्या 20 है कैल्शियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। यह भी स्थायी होने के लिए बाहरी 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है और इसकी भी संयोजकता +2 है। तो आप 1 से लेकर 18 बुक में से आप देखें और 19 और 20 तो टोटल आप 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स को आप स्टडी करें। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप वीडियोस को ध्यान से देखते रहें और उन्हें समझते रहें। थैंक यू।